Ma'am. Good morning, all the participants. We are on day 3 now, and today onwards we are going to touch upon some topics belonging to unit number 3. And today I'll be engaging in your sessions for about 3 hours. And I'm going to divide today's 3 hour session into two parts. The first part 90 minutes and another next half 90 minutes. So for the first 90 minutes, we'll be having discussions on two topics from unit number 3, and we'll be focusing more on designing questionnaires and schedules. This is the topic which is being mentioned in your curriculum. So before starting, we'll just take a simple glance over the curriculum. You must be having a copy of this particular curriculum with you. Yes. Yeah, this is your curriculum, research methodology coursework, and we are on unit 3. As you can read the heading of unit 3, data collection and analysis, and the topics which I have highlighted in this red rectangle, these are the topics that we are going to discuss today. So the first topic in line is primary data, and in primary data, we're supposed to have discussions on designing questionnaires and schedules. Along with that, we'll be having discussions on checking consistency, reliability, and validity of data. And this is a topic which is being lined up for tomorrow's discussions. And today again, we'll be having discussions on one simple topic, that is secondary data, the major sources of secondary data, the journals and all. So this is what is lined up for today's 3 hours discussions. So before getting into my core presentation part, I just wish to confirm that I hope you people must be comfortable with a combination of two languages, Hindi and English, because my intention is pretty clear. आप सबको ये कोर्स वर्क अटेंड करके ये समझना है, आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उसका अंडरस्टैंडिंग होना, उसका कॉम्प्रहेंशन होना जरूरी लगता है। और दूसरी चीज आपको ये समझ के एग्जाम अपीयर करनी है और क्रैक भी करनी है। सो विद दिस थिंग्स इन माइंड, मुझे लगता है कि आई मस्ट प्रोसीड विद टू सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन माय माइंड। तो पहला है कि मैं जो भी अभी पढ़ाऊंगा टॉपिक्स, आपको लगभग 3 दिन तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इन 3 दिनों में मैं जो भी पढ़ाऊंगा, आपको जो भी समझाने की कोशिश करूंगा, वो आपके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो है आपके रिसर्च के, उसमें काम में आए, और उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को थोड़ा फैसिलिटेट करो, अंडरस्टैंडिंग दे के, और उसकी थोड़ी सी अगर क्वालिटी में अगर इम्प्रूव कर पाऊँ, तो ये एक मेरा ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव रहेगा। और दूसरा जो आपका एग्जाम है पीएचडी का, इसमें जो करिकुलम में टॉपिक्स दिए हैं, मेरा दूसरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको इस तरीके से ये सब चीजें समझा दूं कि यू शुड बी फील कॉन्फिडेंट इनफ, कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूंगा कि आप एग्जाम में इसको समझ के आप एग्जाम क्रैक कर सके। तो विद दिस टू सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वी आर नाउ प्रोसीडिंग इनटू आवर कोर डिस्कशंस। So these are the contents of my today's 3 hours presentation, and I have structured my today's presentation into 4 apparent sections, as you can see on the screen. The first section is devoted to discussions on primary versus secondary data, and which has got state mentioned in your curriculum as well. So primary versus secondary data, this is what we are going to discuss in the first section. Second section will be having discussions on the major sources of secondary data. And the third and fourth sections will be having discussions on questionnaire designing part. So in the third section, we'll be having discussions on questionnaire versus schedule, what basically a questionnaire is and what is a schedule. And again, we're trying to differentiate both these documents in technical sense. And in the fourth step, we'll be having discussions on how to design questionnaire. Okay, so this is what we can call it as a framework of my today's presentation. This is a simple outline. मेरा लेक्चर शुरू करने से पहले फिर से एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस है, it has got slight orientations towards applications in social sciences and interdisciplinary research studies. आप में से जो रिसर्च स्कॉलर्स सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स है, खास करके इकोनॉमिक्स हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो,
या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, लाइब्रेरी साइंस, या इंटरडिसिप्लिनरी के कुछ सब्जेक्ट्स, या बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो रिसर्च स्कॉलर्स है, इनको ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा काम के हैं, so they can easily relate with me. So with this particular backdrop, I am getting into my actual presentation now, and we are obviously going to start our discussions with the first section, that is primary versus secondary data. और आपको सुन के मालूम होगा ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या है, पर मुझे लगता है मैं मेरी तरफ से आपको एक बार समझा दूं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी इसको डिस्कस करना जरूरी लगता है। आपको थोड़ा बहुत मालूम भी हो तो भी मुझे लगता है कि मैं अपने शब्दों में इसको समझा दूं। बात कर रहे हैं हम लोग डेटा की। आपको भी मालूम है कि डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च में। योर एंटायर रिसर्च स्टडी रिवॉल्व्स अराउंड डेटा, द कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, दिस इज व्हाट वी टिपिकली कन्फ्रंट विद व्हाइल कंडक्टिंग आवर रिसर्च स्टडी। So as you can see, आपको मालूम है कि डेटा का मतलब क्या है। These are simply facts and figures, or these may be recorded measures, or these may be the responses that we generate while conducting our surveys or conducting our or performing our experiments. आपको भी मालूम है कि रिसर्च करने के जो मुख्य दो मेथड्स है, वैसे चार है, आने वाली स्लाइड्स में मैं बता ही रहा हूँ। और आपको भी मालूम है कि सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, इसमें जो रिसर्च करने का तरीका है वो मोस्टली सर्वे बेस्ड होता है। और सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स में आपको मालूम है क्वेश्चन बनाना होता है और वो हम लोग एडमिनिस्टर करके आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो आपका जो फिल्ड इन फॉर्म है, सर्वे फॉर्म, उसमें जो लिखा हुआ है दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज द रेस्पॉन्सेज, एंड दीज आर टिपिकली डेटा यू कैन रिगार्ड इट एज। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ पे आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये जो सब्जेक्ट्स है, इसमें खास करके रिसर्च करने का जो तरीका है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। और एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप कुछ जॉटिंग्स लेते हो, ठीक आप कुछ रिकॉर्ड्स का ऑब्जर्वेशन लेते हो और उसकी जॉटिंग्स लेते हो इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स और रनिंग नोट्स यू कैन से। तो वो जो आपके पास हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, दोस पर्टिकुलर कैन बी रिगार्डेड एज योर डेटा. So data typically these are the facts or recorded measures that I already defined. So it is very simple to understand, as you can see, data that you possibly know very well. One important peculiarity of data is typically available in a raw form. Raw का मतलब है it is available in unprocessed form. Whatever you have observed, you have recorded. यानी में आप सर्वे कर रहे हो, आपके रिस्पॉन्डर्स ने आपके सर्वे फॉर्म फिलअप कर दिए, या फिर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस दिखे आपने उसको सिंपली रिकॉर्ड कर दिए। सो व्हाट यू हैव डन ओवर हियर, यू हैव सिंपली रिकॉर्डेड व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड or whatever you have noticed, either in the laboratory or on the field, you can say. So that is typically data. But data are available in a raw form. What does this mean? These are considered as your unprocessed unprocessed characteristics. Unprocessed का मतलब है कि these are typically very difficult to comprehend. These are meaningless unless they undergo some sort of processing. डेटा जो हमने कलेक्ट किया हुआ है वो वैसे मीनिंगलेस है, और डेटा जो है वो डिसीजन मेकर्स जो है उनको इतना काम में नहीं आता है unless it undergoes some sort of statistical processing. So this is about data, and these are few examples of data. So data may be available in your numerical sense, the absolute numerical sense, you can say. This may be available in the form of ratings. This may be available in the form of descriptive narrations. May be available in the form of responses that your respondents have filled in while responding to your questions in a survey form. This may be in the form of field notes. This may be in the form of quotations, or this may be in the form of handwritten notes, you can say. So these are few examples of data, and this is what we typically try to gather while conducting our research studies. Now, there are two terms. One is data and another is information. So there is slight a line of difference between both these terminologies. That I told you, data are typically available in a raw form. And in contrast to this, information is processed data. Information is processed data. Information is available in more meaningful sense. और आपके जो डिसीजन मेकर्स है या आपकी रिसर्च स्टडी के जो स्टेक होल्डर्स है उनको डेटा काम में नहीं आता है।
उनको इंफॉर्मेशन काम में आती है। और एज ए रिसर्च स्कॉलर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में, यही रिसर्च एक्टिविटी कहलाती है। हम रिसर्च करते हैं यानी क्या करते हैं, सिंपली वी नेवर कन्फाइन आवरसेल्व्स टू ओनली डेटा गैदरिंग प्रोसेस, है ना, कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करना, दिस इज नॉट रिसर्च। What basically research is transformation of that raw data into meaningful information. That is what basically the research activity connotes. So as a research scholar, it is our responsibility to transform that raw data into meaningful information. So information is the data that has undergone some sort of statistical processing. ऐसा डेटा जिसका statistical analysis हो चुका है and you have derived some kind of results, and those results are available for the decision makers for ready reference. And that those particular results or findings, you can say in general sense, those findings in bullet forms can be considered as your information. Now we are on to the discussion of types of data. You may configure data into different categories, like one context that you can see on the screen कि आपको मालूम है क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, यू माइट हैव हर्ड ऑफ। और अभी जो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, जो यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक है, सो वी आर सपोज टू हैव डिस्कशंस ऑन टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्सेस, कि हमने वो कहाँ से कलेक्ट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज पर्टिकुलर सोर्सेस we can configure data into two types. The first one is primary data and another is secondary data. मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज ले इसलिए गया, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि आप तो पेपर्स और पेन्स रेडी रखेंगे और रनिंग नोट्स लेते रहिए, ओके। क्योंकि आपको दिख रहा है स्लाइड में सिर्फ मैं बुलेट पॉइंट्स लेके आया हूँ, इसको मैं एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो स्लाइड में नहीं आती है, पर मैं शायद बात कर पाऊंगा। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं बता रहा था टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, कि हमने वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है। यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैरामीटर वी कैन डिवाइड डेटा इनटू टू टाइप्स। दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इट इज अबाउट व्हेन यू टेक इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ डेटा, कि आपके पास किस तरीके का डेटा है। वो क्राइटेरिया यूज करके जब आप डेटा को डिवाइड करते हो, तो यू हैव गॉट क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव इज बेसिकली these are counted data, you can reckon it as, or these are available in the form of views, expressions, or some sort of suggestions or observations. So qualitative, it is more in the form of comments, you can say, जैसे आप फेसबुक या ट्विटर पे जो कमेंट्स देखते हो, हैशटैग पे जो कमेंट्स आते हैं, what sort of data is this? This data is considered as qualitative data because it is available in the form of comments. Mostly numbers are missing. Numbers are missing. Whenever data is expressed numerically, that becomes your quantitative data. Quantity means numbers, numerical data, you can say. So that is another configuration, but that discussion is out of the scope of my today's topic. So I'm confining my discussions elaborately only on primary versus secondary data. So we are getting into it now. What is primary and what is secondary? So we are on to the first configuration of data, that is called as primary data. Again, I'm repeating कि आपने ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है, that will determine कि आपका डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है। 3 बुलेट पॉइंट बताने की कोशिश करो जैसे आपके स्क्रीन पे है। The first what we can say information about your data, primary data, is primary data can be considered as your first hand data. What does this mean? First hand का मतलब है this data is gathered or collected by research scholar on his or her own. After taking into consideration his or her own project needs. थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। आप रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, आप अगर साइंस इंजीनियरिंग के रिसर्च स्कॉलर है, तो आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त जो भी आप जॉटिंग्स लेंगे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज योर प्राइमरी डेटा बिकॉज इट इज फर्स्ट हैंड डेटा। अगर आप सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो उस वक्त जब आप क्वेश्चनियर या सर्वे फॉर्म जो है आपका, वो रेस्पोंडेंट से जब फिलअप करा लोगे,
So that particular data can be considered as primary data because this data is collected by the research scholar after taking into consideration his or her own project needs. आपने आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो डेटा गैदर किया हुआ है उस डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड डेटा. And as it is first hand data, that is why it is original in nature. It is not priorly in existence. You for the first time have generated it. यानी में आपने पहली बार ये डेटा जनरेट किया हुआ है. That is why it is considered as original data. Another peculiarity about primary data is primary data need to be gathered or collected. Primary data is basically available in raw form. यानी में आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो लेबोरेटरी में तो उस वक्त जो आप जॉटिंग्स लेते हो दैट जॉटिंग्स आर अवेलेबल इन रॉ फॉर्म. यानी में सो दीज आर पिक्यूलियरिटीज ऑफ योर प्राइमरी डेटा. अगेन आई एम समराइजिंग इट. दिस इज फर्स्ट हैंड डेटा. ये ऐसा डेटा है कि जो रिसर्च स्कॉलर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स की नीड्स को, नीड्स यानी क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका टॉपिक, आपके हाइपोथेसिस, आपके वेरिएबल्स, इनको ध्यान में रखते हुए आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो हो गया आपका प्राइमरी डेटा. मींस रिसर्च स्कॉलर ने खुद अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो डेटा गैदर किया हुआ है उस डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं. नाउ सेकेंडरी डेटा. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, सेकेंडरी डेटा जो है इट इज कंसिडर्ड एज रेडीली अवेलेबल डेटा. ये डेटा रिसर्च स्कॉलर ने खुद कलेक्ट नहीं किया हुआ है. रिसर्च स्कॉलर ने ये डेटा सर्च किया है. मैं थोड़ा सा मार्कर पेन ऑन कर लेता हूं. ये जो डेटा है रेडीली अवेलेबल डेटा. इन व्हाट सेंस, रिसर्च स्कॉलर जो है इस डेटा को सर्च करता है. ओके ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस हो सकते हैं या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस हो सकते हैं और इसको फिर रिट्राई करता है. रिट्राई एंड रेफर. यानी सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा है जो रेडीली अवेलेबल है. रेडीली कहाँ पे अवेलेबल होगा? ऑब्वियसली ये इंटरनेट पे हो सकता है. और इंटरनेट पे कहाँ पे? तो ऑब्वियसली आपके ई बुक्स में हो सकता है वो, या फिर आपके जर्नल्स में या आर्टिकल्स में हो, या मैगजीन्स में हो, या फिर वेब पेजेस हो. ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस. नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस में आप न्यूज़पेपर्स की बात कर सकते हो, बुक्स की, फिजिकल बुक्स की बात कर सकते हो. तो ये डेटा कहीं पे तो भी रेडीली अवेलेबल है जो रिसर्च स्कॉलर ने खुद कलेक्ट नहीं किया हुआ है. ये डेटा रिसर्च स्कॉलर सर्च करता है, उसको रिट्राइव करता है. रिट्राइव का मतलब है उसको ढूंढ के निकालना और डाउनलोड करना और उसको रेफर करना, यानी क्या, साइटेशन देना. एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं. जब आपका चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऐसे दो वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं, ROL या फिर LR. जब आप लिटरेचर रिव्यू करने की कोशिश करते हो तो उस वक्त जो आप डेटा ढूंढने की कोशिश करते हो वो डेटा सेकेंडरी डेटा होता है. क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आप करते क्या हो, आपकी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हो. वो कीवर्ड्स को आप सर्च करते हो. उस कीवर्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स या फिर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के जो भी आपका लिटरेचर आपको मिल रहा है उसको रिट्राइव करते हो और उसको रेफर करते हो. यानी क्या, आप लिटरेचर रिव्यू में एक समरी फॉर्म में पैराग्राफ लिख के उसको पुट अप करते हो. तो इन शॉर्ट, लिटरेचर रिव्यू करते वक्त जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि ये आपने कलेक्ट नहीं किया है, ये आपने सर्च किया है, रिट्राइव किया है और रेफर किया है. सो आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखते वक्त जो डेटा आप सर्च, रिट्राई या रेफर करते हो उस डेटा को हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं. और ये डेटा रेडीली अवेलेबल होता है. ये डेटा किसी और ने, समवन एल्स, किसी और ने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है. अब ये समवन एल्स यानी कौन हो सकता है? ये इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज हो सकती है, कोई प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. तो ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है और उन्होंने उनकी
उनकी रिसर्च नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये डेटा गैदर किया है। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये डेटा गैदर नहीं किया जाता है। ये जो है किसी और पर्पस के लिए, आपकी रिसर्च स्टडी के लिए ये गैदर नहीं किया गया है। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट एट हैंड था यहाँ पे दूसरे किसी का, उनकी रिसर्च नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये डेटा जो है ये कलेक्ट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पिक्युलरिटी सेकेंडरी डेटा की, द सेकेंडरी डेटा हैज ऑलरेडी अंडरगॉन स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग, यानी ये डेटा जो है इसका एनालिसिस जो है ये ऑलरेडी हो चुका है और ये डेटा हो सकता है इसके फाइंडिंग्स, कंक्लूजन सब, इवन एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ अवेलेबल है। पर प्राइमरी डेटा के सेंस में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी डेटा का एनालिसिस नहीं हुआ होता है, सेकेंडरी डेटा का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका होता है और फाइंडिंग की फॉर्म में ये रेडी रेकनर की तरह रेडी रेफरेंस के लिए अवेलेबल होता है। और सेकेंडरी डेटा जो है इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। व्हाट डज दिस मीन स्टार्टिंग पॉइंट? आप जब रिसर्च स्टडी यानी पीएचडी के लिए जब एनरोल करने की कोशिश करते हो तो आपकी आपकी जो जर्नी शुरू होती है वो शुरू होती है टॉपिक सिलेक्शन से। टॉपिक सिलेक्शन से हमारी रिसर्च की जर्नी शुरू होती है और इसके दौरान हम लोगों को मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। इसके बाद हम लोग टाइटल फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर हाइपोथेसिस, उसके बाद रिसर्च डिजाइन, और यहां से आगे फिर आप कौन से स्ट्रीम के हैं उस वो डिफाइन करेगा कि यहाँ के आगे की स्टेप्स क्या होगी। जैसे आप एक्सपेरिमेंट बेस अगर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट डिफाइन करना होगा या एक्सपेरिमेंट प्लान करना होगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही कहते हैं इसको। या फिर अगर आप सर्वे करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सर्वे प्लान करना होगा। और इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट्स, रिसर्च टूल्स जिसको कहते हैं, ये दोनों में से आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिफाइन होगा आपके रिसर्च के टूल्स क्या होंगे। उसके बाद इन शॉर्ट हम लोग आरएम डिफाइन करने की बात करते हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हो सकती है इसमें। उसके बाद डेटा गैदरिंग एंड उसके बाद फिर प्रोसेसिंग। अभी आप देखेंगे ये जो स्टेप्स है यहां तक की, ये पूरी स्टेप्स में, इन पूरी स्टेप्स में आपको लिटरेचर रिव्यू काम में आता है। अगर आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है तो हम लोग बहुत बार चर्चा तो करते हैं, डिस्कशंस करते हैं हमारे फील्ड के सीनियर लोगों से, बट अलॉन्ग विद दैट इंडिविजुअल हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उसमें हम लोग लिटरेचर रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। गूगल करना या फिर गूगल स्कॉलर को विजिट करना, कुछ हमारी फील्ड के रिसर्च आर्टिकल्स को स्टडी करना, पढ़ना, एंड सो दैट वी कैन जनरेट सफिशिएंट वर्दी रिसर्च आइडियाज सो दैट वी कैन सिलेक्ट आवर रिसर्च टॉपिक। उसके बाद टाइटल फिक्सेशन के लिए भी आपको एलआर एक्टिविटी काम में आती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी क्या, उसमें क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है, एक पैराग्राफ लिखना है, एक पेज लिखना है कि पूरा एक चैप्टर लिखना है, ये जो क्वेश्चंस हमारे मन में है ये शायद लिटरेचर रिव्यू के थ्रू इसके आंसर्स मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ये जो पार्ट है यहाँ पे भी एलआर कम्स हैंडी कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, कितने होते हैं, कौन से ऑर्डर में लिखने होते हैं, उसका ड्राफ्ट कैसे होता है, ये सिंगल सेंटेंस होता है कि पैराग्राफ के फॉर्म में होता है। ये जो हमारे मन में सवाल चलते रहते हैं इसका जवाब भी आपको एलआर के रूप में मिल जाता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, मुझे लगता है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर क्लूलेस रहते हैं। और यहाँ पे भी आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ड्राफ्ट कैसा होता है, हाइपोथेसिस कितने बनाते हैं, हाइपोथेसिस नल लिखना होता है या अल्टरनेट लिखना होता है, ये सब जो हमारे मन में सवाल चल रहे हैं इसका जवाब शायद हम लोगों को एलआर में मिल जाता है। रिसर्च डिजाइन कैसे प्लान करते हैं, हमारे फील्ड में एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडीज हुई है या फिर सर्वे बेस्ड हुई है, रिसर्च टूल्स कौन से यूज किए गए हैं, ये सवालों का जवाब भी शायद एलआर से मिलता है। हमारी फील्ड में रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या फॉलो की जाती है इसका भी जवाब शायद आपको एलआर से मिल जाता है। और सैम्पलिंग, सैंपल साइज कितना लेना है, सैम्पलिंग की मेथड्स कौन सी यूज करनी है, इसका भी जवाब शायद आपको
एलआर से मिलता है। तो इसीलिए एलआर इज बेसिकली अबाउट सेकेंडरी डेटा जो हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। ये में यानी क्या, सेकेंडरी डेटा जो है ये हमारी स्टडी को स्टार्टिंग पॉइंट देता है, यहाँ से ये जर्नी शुरू होती है और बाकी जो स्टेजेस है यहाँ पे भी फाइन ट्यून करने में हम लोगों को एलआर एक्टिविटी जो है वो हेल्प करते हैं। और एलआर एक्टिविटी का और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि यहाँ पे आप रिसर्च गैप्स भी आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, रिसर्च गैप्स। ओके, और ये रिसर्च गैप्स कहाँ से आइडेंटिफाई होगी, जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे उसके बाद you will be able to identify the existing research gaps in your chosen field so that you can identify those gaps and you can plug in those particular existing gaps। और वो प्लग इन कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली जो गैप्स है उसमें से कुछ इश्यूज जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन you select a topic and draft your title accordingly, your research study will be planned। So literature review, with literature review you people are actually trying to educate yourself, you people, research scholars are trying to educate themselves with जो है ये आपको एलआर सॉल्व कर देता है, टू सम एक्सटेंट एलआर हेल्प्स यू। So this is the summary of what we have discussed so far. As you can see, 6 contrasting points: primary versus secondary data. As you can see, primary is first-hand data, secondary is readily available data. Primary data is collected by the research scholar himself or herself. Secondary data is, this data is collected by someone else. This data is not collected by the research scholar. And importantly, this data need to be searched, retrieved, and referred to. Then this is collected for the project at hand. Primary data is collected after taking into consideration the research needs of the research scholar. But this is not the case with secondary data. This is collected for the project at hand. It is not collected for the project at hand. It is being gathered for the project which is being prepared by someone else. Someone else means an agency or an individual research scholar, you can say. Primary data is available in raw form and secondary data is available in processed form. Then the methods of collecting primary data, it is either collected by administering a questionnaire or simply observing the things or conducting some sort of experiments either in laboratories or the field experiments are also there. And as far as secondary data collection part is concerned, by conducting literature review, we are collecting secondary data. Then primary data need to be collected and it is to be referred to and cited. Okay, so this is our section number 1. So primary data, this was the first head of your unit number 3, primary and secondary data. So this part we are done with. If you are having any queries with regard to primary and secondary data, you can unmute yourself and ask. So I'm taking a simple pause for your queries if you wish to ask me. Any questions? Sir, normally there are distinction between primary and secondary. Is there any data which falls in both zones, like which can be classified as both primary and secondary also? Is there any such thing as such? सर, अभी तक हमारे जो डिस्कशंस हुए हैं ना, यहाँ पे हमने सोशल साइंसेस, इंटरडिसिप्लिनरी या फिर इंजीनियरिंग जहाँ पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसकी चर्चा की है। एक फील्ड है जिसकी चर्चा हमने नहीं की, वो है ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर। अभी इसमें ये कॉन्टेक्स्ट शायद थोड़ा सा मिसिंग लगता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। उसको वो लोग प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऐसे कहते हैं। सो व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? इफ सपोज दास बोध पे किसी को रिसर्च करना है, ओके, तो दास बोध वो जो काव्य है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश फॉर्म, यू कैन से एक बुक के फॉर्म में जो अवेलेबल है, दैट इज कंसिडर्ड एज योर प्राइमरी सोर्स। अभी इसी दास बोध पे किसी और रिसर्च स्कॉलर ने रिसर्च किया हुआ है,
तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा, वो जो लिटरेचर होगा, दिस पीपल दे रिगार्ड इट एज द सेकेंडरी सोर्स। वैसे हिस्ट्री वगैरह आप अगर देखेंगे तो वहां पे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये कॉन्टेक्स्ट तो है ही, पर उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट वो यूज करते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। जैसे किसी मॉन्यूमेंट्स पे रिसर्च करना है, या किसी फोर्ट्स पे या केओस पे कोई रिसर्च करना है, या फिर कार्विंग्स जो होती है उसके ऊपर कोई रिसर्च करना है, तो these people consider those particular sources as primary source, not primary data. Okay, so ये जो है ना अविनाश, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी इज मोर अबाउट द फर्स्ट हैंड, जो रिसर्च स्कॉलर खुद कलेक्ट कर रहा है, एंड सेकेंडरी इज रेडीली अवेलेबल, वॉट एवर इज अवेलेबल रेडीली, आइदर इट इज अवेलेबल ओवर इंटरनेट, यू कैन से, और आप उसको सर्च करके ढूंढ के डाउनलोड करके रेफर कर रहे हो, दैट इज स्ट्रेट अवे कंसिडर्ड एज योर सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी आपकी रिसर्च नीड को ध्यान में रखते हुए आपने खुद जो कलेक्ट किया हुआ है, दैट इज प्राइमरी। सो ओवरलैपिंग सर एक आई और एम नॉट फॉलो प्रीटी श्योर अबाउट, सर। एक और फॉलोअप यस क्वेश्चन सर। ये है कि मान लीजिए जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है, and my friend propounds some hypothesis and he is able to establish that, और उसने रिसर्च ओके जस्ट पुट अप कर दिया है, उसका एक्सेप्ट भी हो गया है, और ओके। उसी चीज को मैं ले जाके आगे एक्सपेशिएट करना चाह रहा हूँ या एक्सपांड करूंगा, तो वो जो डेटा वगैरह मैं यूज करूंगा, बिकॉज वो इस्टेब्लिश तो वेरीफाई होके जस्ट अभी एक्सेप्ट हुआ है, तो वो कौन से कैटेगरी में जाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? बिकॉज वो इस्टेब्लिश भी हुआ है, अभी अभी हाल ही में एक्सेप्टेबल हुआ है, बट दैट इज फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। तो ऐसे इसमें वो कौन से कैटेगरी में लेना चाहिए? ठीक है, अभी आपके फ्रेंड ने एक टॉपिक चूज किया, हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश किए या फॉर्मुलेट किए, और उसने वो टेस्ट भी कर लिए। नाउ ही इज डन विथ हिज प्रोजेक्ट। नाउ यू कॉट अप विद दैट पर्टिकुलर आइडिया, यू गॉट इन फैंसी विद दैट आइडिया कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है एंड आई शुड टेक इट अप फर्दर। अभी विद दिस इंटेंशन आपने, टॉपिक शायद सिमिलर होगा, पर आपने आपके खुद के सेपरेट फ्रेश ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बनाए हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा अगेन, देन दैट विल बी फॉर श्योर कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा। अगर आप आपके दोस्त का ही डेटा यूज कर रहे हैं, ओके, कि उसके पास एक्सेस में डेटा उसने जनरेट कर लिया था, इवन दैट पर्टिकुलर डेटा कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा ओनली, बिकॉज that is collected with one particular intention to satisfy the defined set of objectives. Abhinav sir? ओके ओके, राइट, ठीक है, थैंक यू सर। Okay, any further queries? Any further queries? primary Shall I data proceed? ना? हाँ, जानकी ma'am, I can hear you. हाँ सर, प्राइमरी डाटा में जैसे क्वेश्चन है, पिक नंबर पॉइंट, उसमें इंटरव्यू शेड्यूल भी आएगा ना? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये प्राइमरी डेटा यानी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का जो टूल है वो शेड्यूल होता है, उसके ऊपर मैं अभी आ ही रहा हूँ। वो तो टूल्स कहलाते हैं उसको। आपके शेड्यूल में जो लिखा हुआ आएगा, रेस्पॉन्सेज जो आएंगे, आपने किसी का इंटरव्यू लिया और आपने वो जॉटिंग्स ली है, those jottings are considered as primary data, and that form is considered as data collection instrument. Okay, so I'm getting into it now. या ओके सर, थैंक यू। Okay, any other queries? Shall I get down to the second section now? Well, I can't see any queries in the chat box as well, so I'm proceeding now. So we are on to section number 2, sources of secondary data. This is the second topic which is being mentioned in your unit number 2. सेकेंडरी का मैंने मतलब समझा दिया है आपको। अभी बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस, ये कहाँ से आएगा। देखिए, सोर्सेस बहुत सारे हैं, पर आज कोविड की वजह से हो या कोविड जब नहीं था तब भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि रिसर्च स्कॉलर्स इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप ग्लोबली कहीं का भी डेटा इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली आसानी से रिट्राइव कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। आप जब किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करोगे तो वहां पे जो डेटा सेट है, ओनली दैट पर्टिकुलर डेटा सेट विल बी एट योर डिस्पोजल ना, तो आपको बस उतना ही सीमित रहेगा, बट इलेक्ट्रॉनिकली आपको चॉइसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं।
So nothing wrong in referring to second your electronic sources. Okay. दो प्रकार के सोर्सेस है, एक है आपके इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस और दूसरे है आपके फिजिकल सोर्सेस। तो फिजिकल सोर्सेस में जब आप कॉलेज लाइब्रेरीज या इंस्टीट्यूट लाइब्रेरीज में विजिट करके वहां से जो जर्नल्स है उसको रेफर करते हो, या फिर वहां पे मैगजीन्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, उसको जब आप एक्सेस लेके कुछ जॉटिंग्स लेते हो और उसको साइट करते हो, तो अगेन दैट इज योर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, यू कैन से। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, आपके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आपके सोर्सेस सेकेंडरी डेटा के कुछ की कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है, उसको आप रेफर कर सकते हो। तो ये कुछ सोर्सेस है, पर यहाँ पे ये बताने के लिए तो मैं नहीं हूँ, ये तो आपको भी मालूम है ना, मेरा रोल कुछ और है। मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जब आप सर्च कर रहे हो, आपको भी मालूम है कि लिटरेचर रिव्यू एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी रिसर्च स्टडीज में। ओके, और अभी भी मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन यह है कि अब हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंने मेरे ख्याल से पहला जब प्री पीएचडी कोर्स वर्क हुआ था 2011-12 में, तब से मैं ये प्री पीएचडी कोर्सेस ले रहा हूँ RTM यूके और बाकी भी यूनिवर्सिटीज के। तो मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि आज भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस के बारे में उतने डिटेल में जानकारी नहीं है, और वो जनरली गूगल करते हुए देखे गए हैं, और गूगल इज नॉट द राइट सोर्स, कि खास करके रिसर्च स्टडीज के लिए गूगल नहीं बना है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है, या फिर जिसको रिपोजिटरीज कहते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग भी बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज या जिसको डेटाबेसेस कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। और ये आप ऑथेंटिक सोर्सेज जो है जिसके साइटेशंस माने जाएंगे, वो कहाँ से आप रिट्राइव कर सकते हो, कहाँ सर्च कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेस के। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस क्या हो सकते हैं उसकी, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। सो प्लेन गूगल ना करते हुए आपने गूगल स्कॉलर को रेफर करना चाहिए, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी होगा, पर मुझे लगा कि शायद कोई एक हो सकता है जो बहुत ही नया हो, अभी अभी जस्ट पीजी करके उसने पीएचडी के लिए एनरोल किया हो, तो उन लोगों को शायद नहीं मालूम रहता है। पर गूगल स्कॉलर एक अच्छा सर्च इंजिन है, और यहाँ पे आपको जो नहीं मालूम गूगल स्कॉलर को कैसे सर्च करते हैं, ये भी थोड़ा सा एक विषय है कि जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मैंने 1 मिनट बात कर लेनी चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि गूगल स्कॉलर में भी सर्चिंग कैसे करते हैं। ओके, शायद थोड़ा सा यूजफुल भी रहेगा आपको, क्योंकि आपको रिसर्च पेपर्स भी तैयार करने हैं, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये करना अनिवार्य है आपके पीएचडी के लिए, तो है ही है ये चीज है। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जस्ट where it is, yes it is here. थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कोई एक अनम्यूट करके कि आपको मेरा गूगल स्कॉलर का विंडो दिख रहा है। Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, इसमें ना बुलियन कमांड्स अगर आप यूज करते हो तो ये गूगल स्कॉलर का सर्चिंग जो है ये मीनिंगफुल हो जाता है। मैं छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, जैसे मैं हाल ही में इन दिनों एक पेपर पे काम भी कर रहा हूँ, और वो है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे कुछ ढूंढना है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर को लेके। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर
जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे, तो गूगल स्कॉलर ने मुझे ये रिकॉर्ड्स रिट्राइव करके दे दिए। और आप जैसे देख रहे हो कि 20,90,000 रिकॉर्ड्स इसने दिए हैं। अभी मैं तो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं ये कहाँ इतने लगभग ये Sir, 21 लाख है, मैं sir, कहाँ ढूंढ के sorry. बैठूंगा ना ये। यस मैम, Sir, sorry to interrupt, but the next screen we are not able to see. Now, yeah, now. द गूगल स्कॉलर यू आर नॉट एबल टू सी। Yeah, it was on the same search bar, but now it is redirected. Okay. So can you see it now or shall I share it again? We can see now. It's Okay, visible, sir. fine. Continue, sir. Visible, sir. हाँ, Sir, it वो is कैसे visible. You can move ahead. बिल्कुल, वो थोड़ा सा ना बफर का टाइम शायद, यानी मैंने यहाँ पे ऑपरेट करने के बाद वहाँ आपका जो कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा सिंक होने में शायद कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते होंगे, शायद एक थोड़ा सा डिले आता है। वेल, आई एम Yes. प्रोसीडिंग नाउ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल स्कॉलर ढूंढते कैसे मीनिंगफुली। तो आप जब कीवर्ड्स लेके जाओगे गूगल स्कॉलर में और ऐसे ही जनरली सर्च करते हैं, मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जब आपने ये कमांड दी, ये कीवर्ड्स की जब कमांड दी, तो गूगल स्कॉलर थियरी, जहां जहां थियरी वर्ड दिखेगा उसको ले लेगा, जहां जहां ऑफ दिखेगा वो ले लेगा, और जहां जहां उसको प्लान्ड दिखेगा वो ले लेगा, और जहां जहां उसको बिहेवियर दिखेगा वो ले लेगा। और ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स मिला के उसके पास इतना रिपोजिटरी आया है। और हम लोगों को तो ये चाहिए ना, इसके लिए हम लोगों को इसको एज ए फ्रेज कंसिडर करना चाहिए। What Google Scholar is presently doing, Google Scholar is considering these as separate words. Getting me? These four are the words. These inputs are for Google Scholar. Now we must facilitate Google Scholar कि हम लोग exactly क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसको ना आप वर्ड में ना रखते हुए इसको आप फ्रेज में डाल दीजिए। फ्रेज, व्हाट डज फ्रेज मीन? कि आप जब इसको डबल कोट में डाल देंगे, गेटिंग मी, तो आप देखेंगे ये 20,90,000 से ये रिकॉर्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे। एज यू कैन सी, इट हैज गॉट रिड्यूस डाउन टू 1,87,000 नाउ। सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है, क्योंकि अभी गूगल स्कॉलर ने क्या किया, हमको थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर चाहिए, हमको थ्योरी अलग से नहीं चाहिए, हमको ऑफ अलग से नहीं चाहिए, हमको प्लांट अलग से नहीं चाहिए, और बिहेवियर अलग से नहीं चाहिए, हमको ये पूरी की पूरी चीजें ऐसी की ऐसी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज चाहिए। दिस इज व्हाट वी डिक्टेटेड गूगल स्कॉलर, and Google Scholar has provided us this particular phrase in every article now. As you can see, theory of plant behavior, the single term, as you can see. Getting me? अभी इसके साथ इसको ना हम लोग जो कर रहे हैं इसको बुलियन कहते हैं। ओके, अभी मुझे तो सिर्फ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे काम नहीं करना है, मुझे इसके साथ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के 1,87,000 यहाँ पे आर्टिकल्स दिख रहे हैं। इसमें अभी थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर साइंस में भी आता है, आर्कियोलॉजी में भी आता है, मेडिसिन में भी आता है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो बिजनेस मैनेजमेंट वाला ही सपोज चाहिए। और मेरे दिमाग में एक टॉपिक चल रहा है परचेस इंटेंशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे AND एंड फंक्शन कहते हैं इसको, ये एंड फंक्शन इसको दे दूंगा, और यहाँ पे मैं मेरा जो दूसरा कीवर्ड है वो इसको दे दूंगा। मुझे चाहिए थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में परचेस इंटेंशन ये वर्ड, क्योंकि थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में 5 वेरिएबल्स आते हैं, और मेरा जो वेरिएबल है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं मेरे पेपर में वो है परचेस इंटेंशन। तो मैं गूगल स्कॉलर को बोल रहा हूं कि थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में जहां जहां परचेस इंटेंशन होगा मुझे सिर्फ ऐसे पेपर चाहिए। और हमने यहाँ पे एंड फंक्शन यूज किया, ये कैपिटल में ही आप लिखेंगे AND एंड फंक्शन। अब आप सर्च करेंगे तो इट विल for sure reduced down, as you can see 16,500। Getting me? अभी तीसरा कीवर्ड में इसको फीड कर रहा हूं कि परचेस इंटेंशन किस चीज का, जिसको कहते हैं इंडस्ट्री या फिर सेक्टर, और मैंने सेक्टर चूज किया है इफ सपोज ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे फिर से एक एंड फंक्शन देना होगा हमको, एंड फंक्शन, एंड देन मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन शॉपिंग की, और फिर से मैंने इसको डबल कोट में दे दिया, यानी मैं इसको बुलियन यूज कर रहा हूं। It will again get reduced down, as you can see 5,440 now। ये मेरे काम के हैं। अभी ऑनलाइन शॉपिंग ये मेरे दिमाग में चल रहा है,
पर किसी रिसर्च स्कॉलर ने, जिस किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई पेपर्स तैयार किए हुए हैं, उसने ऑनलाइन शॉपिंग यूज, ये वर्ड यूज ना करते हुए उसने सपोज इंटरनेट शॉपिंग यूज किया होगा, हो सकता है, या फिर ई शॉपिंग, ई बाइंग, ऐसे कुछ वर्ड्स उसने यूज किए होंगे, तो मुझे वो भी इसमें चाहिए ये सर्च में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड दूंगा अभी बुलियन की, और ऑनलाइन शॉपिंग का ही अल्टरनेट वर्ड मैं उसको दे रहा हूं, जिसको और कमांड कहते हैं, और वो वर्ड मैं इस बार दे रहा हूं इंटरनेट, इंटरनेट शॉपिंग। ओके, नाउ यू सर्च इट विद दिस कीवर्ड्स as you can see. So these are the records, getting me? These are the records which are useful to me. इसके बाद क्या करना है, आप ये राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे, जहां जहां पीडीएफ लिखा है ये रिकॉर्ड हमारे काम के, यानी ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये देखेंगे आप, ये HTML है, ये शायद सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इसका अवेलेबल होगा, जो शायद मुझे इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, यानी फुल लेंथ पेपर जो है वो यहाँ पे शायद मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। इसका सवाल ही नहीं, ये नहीं मिल रहा है। तो जहां जहां पीडीएफ मिल रहा है, ये पेपर्स हमारे काम के और आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करते वक्त और एक चीज क्या देख सकते हैं आप, साइटेशंस आप देख रहे हैं, साइटेड बाय, जहां जहां 50 के ऊपर साइटेशंस होंगे वो बहुत तगड़े क्वालिटी के पेपर माने जाते हैं। आप देख रहे हैं 158, यानी ये पेपर तो मैंने डाउनलोड करना ही चाहिए और मैंने रेफर करना ही चाहिए, और मेरे लिटरेचर रिव्यू में ये पेपर तो आना ही चाहिए। यानी में आप देखेंगे साइटेशन वाइज, इसको हम लोग ओपन सोर्स कहते हैं। ये ओपन एक्सेस में है क्या, ओपन एक्सेस यानी क्या, फ्रीली डाउनलोडेबल है क्या। यहाँ से आप अगर इसको ओपन करते हैं तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड फॉर्मेट में मिल जाएगी आपको। कहीं कहीं एक्सेस डिनाइड भी आ जाता है, तो आप चेक कर लेंगे। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्च और रिट्राइवल। यहाँ से शायद आपको फुल लेंथ, ये फुल टेक्स्ट पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सर्च एज फार एज गूगल स्कॉलर पार्ट इज कंसर्न, यानी जो बहुत ही बेसिक है। गूगल स्कॉलर सब लोगों ने गूगल स्कॉलर करना ही चाहिए, एंड आवर लिटरेचर रिव्यू में स्टार्ट विद, क्योंकि इसको लॉगिन नहीं लगता है, फ्री एक्सेस है, आप घर बैठे आसानी से कर सकते हो। द ओनली वे टू डू दिस इज दिस। मुझे लगता है ये एक शायद नया इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, जिसको कहते हैं बुलियन सर्च। ओके, अभी मैं Yes, sir. कुछ और सोर्सेज बता दूं, अभी मैं आपको कुछ Excuse me, sir. और Sorry to सोर्सेज। interrupt. यस हेलो Sir? सर। एक्चुअली citation- थोड़ा ma'am, बीच में मिनट मैम। आवाज एक्चुअली आवाज आपका थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में, व्हेन यू वर टेलिंग कि ऑनलाइन शॉपिंग की जगह अगर कोई ई बाइंग लिख रहा है या इफ समवन इज यूजिंग हाँ, अदर वर्ड, तो आपने क्या Correct. और और ओ ओके आर ओके आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शायद ये। यस इसके बाद आप कितने भी आर और Okay. कब लगाते हैं आप, जैसे सिनोनिमस वर्ड्स है या फिर Correct. मिलते जुलते Yes. कीवर्ड्स है, ओके उसके लिए और एंड कब यूज करते हैं। एंड यानी आपको दो सेपरेट कीवर्ड सर्च करने, जैसे राइट थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर सेपरेट थ्योरी है, यानी में ये थ्योरी की Right. बात हो रही है, और थ्योरी का वेरिएबल परचेस इंटेंशन है, इसलिए मैंने एंड लगाया है। एंड Okay. ये दो सेपरेट चीजों को सर्च करने के लिए लगाते हैं, और जो है वो सिमिलर चीजों का सर्चिंग के लिए लगाते हैं। राइट गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। Okay? आई हैव Yes. क्वेश्चन सर। सर जब भी हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, इसको खोलते भी हैं गूगल स्कॉलर को, तो सर एक एक पैराग्राफ के फॉर्म में मिलता है, पूरा हम नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो ओपन एक्सेस में नहीं है, इसलिए सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आता है। वो जो एक पैराग्राफ बोल रही है ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट जी। कहते हैं। तो Right. आपको फुल लेंथ पेपर अवेलेबल है कि नहीं है वो जानने का ये तरीका है। ये पीडीएफ अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए पूरा पेपर है। पीडीएफ जहां पे नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है, जैसे ये HTML, ये सर आप यहाँ पे बताइए। आपको फुल लेंथ नहीं मिलेगा। ठीक। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे शायद एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा, पर यहाँ पे फुल लेंथ पेपर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। बट अभी यस यस इसके लिए एक्सेस कैसे मिला सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कि आपको लगता है कि जैसे ये पेपर, ये 192 साइटेशंस है, बहुत तगड़ा पेपर लग रहा है ये तो। एकेडमी अभी ये गूगल स्कॉलर से तो एक्सेस नहीं हो रहा है, और विले का है ये तो, और विले भी मालूम है आपको बहुत ज्यादा जानी मानी रिपोजिटरी है। तो विले में ये पेपर है और आपको ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है गूगल स्कॉलर में, तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो विले की जो रिपोजिटरी है वहां पे मिलेगा आपको ये, और ओपन एक्सेस में है कि नहीं वो पता चल जाएगा।
तो ये तो मैं जस्ट गूगल स्कॉलर का बताया हूँ, बाकी रिपोजिटरीज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम मुझे टॉपिक क्या दिया गया है, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, और जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये एक्चुअली बोनस है। पर देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि रिसर्च करते वक्त में दो चीजें होती हैं। रिसर्च करने के लिए एक तो नॉलेज लगता है और दूसरी स्किल लगती है। फर्क क्या है नॉलेज और स्किल में? यानी रिसर्च करते वक्त, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। नॉलेज मतलब जिस स्टेज पे अभी हम लोग हैं कि हमको मालूम है क्या करना है, बट हमारी सर्च प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, वी आर नॉट स्किल्ड। मैं थोड़ा सा मेरे शब्दों में बता देता हूँ। Sir, can develop the skill through knowledge. एक मिनट, हाँ, मेरे यहाँ थोड़ा सा नॉइस हो रहा है कुछ। देखिए, रिसर्च करते वक्त नॉलेज लगता है, स्किल लगती है। नॉलेज यानी क्या? रिसर्च करते वक्त हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है ये अगर आपको मालूम है तो ये हो गया नॉलेज। स्किल यानी क्या? मैं अगर आपको एक टॉपिक देता हूं और मैं बोलता हूं कि इस टॉपिक पे हाइपोथेसिस बनाइए, वो होगी स्किल। यानी मैं अभी, ये जो आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा है, मुझे टॉपिक दिया गया है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, और उसमें कॉमा कॉमा करके कुछ सोर्सेस के नाम दिए हैं। अगर मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि गूगल स्कॉलर करिए, ये हो गया नॉलेज। पर कैसे करते हैं वो हो गया स्किल। तो मैं बिलीव करता हूं सिर्फ नॉलेज में नहीं, आपको वो चीज सिर्फ मालूम होके नहीं चलता है। रिसर्च में वो आपको करते आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही क्वालिटी सुधरेगी ना। आपको अगर मालूम है कि स्मार्ट पीएलएस नाम का कोई सॉफ्टवेयर है जो बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है, ये नॉलेज है ना। आप जब खुद यूज करोगे तो वो स्किल आएगी, और आपकी रिसर्च की क्वालिटी कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? आपके नॉलेज से नहीं, आपकी स्किल से और आपने जो किया हुआ है उससे। और मैं बिलीव करता हूँ सबसे पहले नॉलेज देना, और नॉलेज थोड़ा बहुत आपके पास होता ही है। मैं बिलीव कर रहा हूँ स्किल डेवलप करना है। आपने गूगल स्कॉलर इससे पहले यूज किया होगा शायद। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि उसमें एक लाइन थोड़ी सी और ऐड कर देता हूँ तो शायद आप जो कर रहे हो वो और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए। ठीक है, तो ये गूगल स्कॉलर की बात हो गई। अभी मैं बाकी सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और कैसे सर्च करना है वो भी बता देता हूँ। थोड़ा सा नोट भी कर लेंगे आप। ये और एक साइट है, ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशंस, OATD मैं इसको कहता हूँ। और इसमें ना आपको थेसिस मिल जाएंगे। आपको भी मालूम है कि लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रेफर करने होते हैं, जिसमें आपके रिसर्च पेपर्स ऑब्वियसली, जिसको रिसर्च आर्टिकल्स भी हम लोग कहते हैं, उसमें कुछ थेसिस भी आपको इंक्लूड करने हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी करने हैं, और कुछ बुक चैप्टर्स होते हैं उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आर्टिकल को लेके तो आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, पर थेसिस कहाँ से आप रिट्राइव कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, उसके लिए शायद आपको एक तो मालूम है शोध गंगा। पर शोध गंगा के अलावा आप ओपन एक्सेस थेसिस, शोध गंगा क्या है? शोध गंगा इंडिया का रिपोजिटरी है, इन्फ्लिबनेट का है। इंडिया में जो रिसर्च चल रहा है उसके, यानी पीएचडी के थेसिस जो है वो आपको शोध गंगा पे मिल जाएंगे। पर इंडिया के बाहर क्या पीएचडी चल रहे हो उनके थेसिस को अगर आपको एक्सेस चाहिए तो फिर OATD ये साइट पे आपको वो इजीली डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिल जाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशन का होम पेज है। यहाँ पे आप सर्च की, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आप फीड कर देंगे। आप देखेंगे इसका रिपोजिटरी, मैंने ये 8 मार्च 2020 को जब मैंने इसको विजिट किया था, तो आप देख सकते हैं लगभग ये 50 लाख थेसिस दिख रहे हैं इसमें। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे ब्राउजिंग कर सकते हो, और ओपन एक्सेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई लॉगिन नहीं स्कॉलर का लगता है। पेज दिख रहा है अभी तक, स्कॉलर का पेज दिख रहा है सर अभी। अच्छा, मैं फिर से शेयर करता हूँ इसको। मैं स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है आपका, इस शायद इसके लिए हो रहा है ऊपर में जा। हाँ, हो सकता है। मैं कैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे यहाँ नॉइस चल रहा है, तो मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली ना, तो वो शायद नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा। यस सर, यस सर। सर आपने फॉरेन थीसिस और जो भी आउट ऑफ इंडिया पीएचडी चल रहा है उसके बारे में सर्च करने के लिए क्या कहा है? OATD मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरे। OATD। हाँ,
अभी आपको मेरी पीपीटी दिख रही है? यस सर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशन। ये गूगल में आप टाइप कर लेंगे कि ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशन। ये अगर आप गूगल में टाइप कर लेंगे, गूगल की सर्च विंडो में, तो आपको ये लिंक आ जाएगी OATD नाम से। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप साइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे। ये होम पेज है और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स देने हैं आपके। ओके, ब्राउजिंग थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर से आ जाता है, वो जैसे जैसे आप इसको हैंडल करोगे वैसा वैसा वो विथ ईज यू विल बी एबल टू ऑपरेट। ओके, और ये ओपन एक्सेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आसानी से आप इंटरनेशनल थेसिस को रेफर कर सकते हो और आप लिटरेचर रिव्यू में यूज भी कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी के, जैसे मैंने जस्ट कीवर्ड डाल दिया होटल मैनेजमेंट, तो मेरे सामने ये सब होटल मैनेजमेंट वाले आ गए और यहाँ से फिर आप लिंक दी है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा थेसिस विल बी एट योर डिस्पोजल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिफाइन सर्च है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी वाइज चेक करना है या फिर आपको ईयर वाइज करना है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करते वक्त पिछले 5 साल का करना चाहिए ऐसे बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे 2016 से 2020 का ही पहले आप देखेंगे। 393 है इसमें, तो इतना सफिशिएंट हो जाता है हमारी पीएचडी के लिए। तो यहाँ से आप ये लिंक को ओपन करके रेफर कर सकते हो। बाद में ये NDLTD, ये और एक रिपोजिटरी है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। और मेरे ख्याल से हिरवड़े मैडम जो आपका लेक्चर लेगी उसमें ये और ज्यादा आपको एलैबोरेटली मैम शायद बता देगी। बाद में ओपन थेसिस रिपोजिटरी, ये एक साइट है। उसके बाद एनलिस्ट, इसको लॉगिन लगता है, इंस्टीट्यूशनल लॉगिन होता है इसका। नागपुर में है कुछ कॉलेजेस में, मुझे मालूम है, मैं भी यूज करता हूँ। अच्छी रिपोजिटरी है एनलिस्ट, और आपके कॉलेजेस में भी इसका लॉगिन होगा। एक बार आपके कॉलेज के जो लाइब्रेरियन है उनसे एक बार बात कर लीजिएगा एनलिस्ट का लॉगिन है क्या। तो मोस्टली वो होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में है ही है, सिर्फ हमको मालूम नहीं होता है। जो मेडिसिन, फार्मेसी और साइंस के जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो पबमेड को यूज करते हैं, आपको भी मालूम है, बहुत ही जानी मानी रिपोजिटरी है। बाद में शोध गंगा, ये थेसिस के लिए इंडियन जो पीएचडी थेसिस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको शोध गंगोत्री दिख रहा है और शोध सिंधु दिख रहा है। शोध गंगोत्री में आपको सिनॉप्सिस मिल जाते हैं। ओके, ऑनगोइंग जो रिसर्च स्टडीज चल रही है, जिनका पीएचडी अभी हुआ नहीं है और चल रहा है, उनके सिनॉप्सिस का रिपोजिटरी शोध गंगोत्री है और यहाँ पे आपको थेसिस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी वाइज ब्राउजिंग। यहाँ पे ये सर्च विंडो है, यहाँ पे आप एडवांस सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो डिसिप्लिन पूछेगा, सब्जेक्ट पूछेगा, बाकी ईयर पूछेगा, यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा। ये सब आप एडवांस सर्च पे जाके कर सकते हैं यहाँ पे, और ये आपने किया भी होगा। शोध गंगा तो सबको मालूम है, पॉपुलर है। बाद में इंटरेस्टिंग चीज थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको शायद नहीं मालूम होगी, वो है हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। मैं थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ छोटा सा। इसमें ना एक सेपरेट 3 घंटे का लेक्चर हो सकता है, इतना सारा है इसमें बताने के लिए। पर मैं जो इंपॉर्टेंट है वो तो बता देता हूँ आपको, क्योंकि टॉपिक जो है ना मेन आज का वो क्वेश्चनर डिजाइनिंग का है। पर ये चीजें मालूम होनी ही चाहिए रिसर्च स्कॉलर को, इंसिडेंटली वो नहीं मालूम होती है। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, एक बार मुझे बता दीजिएगा मेरा गूगल विंडो आपको दिख रहा है क्या। कोई भी एक जन कंफर्म कर दीजिए, मेरी गूगल की विंडो दिख रही है आपको? यस सर। Yes, sir. Now it is visible. ओके, यहाँ पे RTMNU नागपुर, ये साइट है हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी की। इसमें ये ई लाइब्रेरी दिख रहा है आपको, ई लाइब्रेरी। ओके, ये ई लाइब्रेरी में ई जर्नल्स है। ओके, ये ई जर्नल में आप जा सकते हैं। इसमें ना आप देख सकते हो ई बुक्स भी है यहाँ पे। उसके बाद रिमोट लॉगिन, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से ही मिल जाता है। ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से लॉगिन करना होता है। ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे फीड कर देंगे। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास है मेरा यूजर नेम और पासवर्ड।
पर फॉर द टाइम बिंग मैं वहां पे जा रहा हूँ वापस। ये कैसे एक्सप्लोर करते बता देता हूँ, बाद में ये ई जर्नल का जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग है अल्फाबेटिकली। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग है। जैसे मैं बिजनेस मैनेजमेंट का हूँ तो मैं वो देख रहा था बिजनेस, हाँ ये है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हो टेलर एंड फ्रांसिस, स्प्रिंजर। मैं स्प्रिंजर का ओपन करके दिखा देता हूँ। ये दोनों बहुत बढ़िया है, सब तगड़ी क्वालिटी के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जर्नल की लिस्ट आ गई है और सर्च विद इन रिजल्ट्स। तो मैं इसको सर्च कैसे करते हैं उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो फॉर द टाइम बिंग मैं मेरी दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं थोड़ा लॉगिन कर रहा हूँ उसमें, और लॉगिन करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ एक छोटा सा। Allow me a moment. आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है, ई जर्नल्स, ई बुक्स जो मैंने लॉगिन किया हुआ है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा स्टेप्स आप नोट कर लेंगे फटाफट। ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी ये ई जर्नल जो है इसमें जा रहा हूं मैं। रिसोर्सेस लिस्ट दिख रहा है, ये इसमें मैंने क्लिक किया। आप देख रहे हैं ये सब रिपोजिटरी है जो हमको सिलेबस में क्या दिया है, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये है हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस, दिख रहा है आपको। इसमें जो रेफर करने लायक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है एमराल्ड, अच्छी क्वालिटी का जे स्टोर है, ये सब अच्छे ही है नो डाउट। ऑक्सफोर्ड है इसमें, बाद में प्रोजेक्ट म्यूज एक अच्छी चीज है। साइंस डायरेक्ट ये एल्सवेयर का है, इसको कोई तोड़ नहीं। स्प्रिंजर है, टेलर एंड फ्रांसिस है, वेब ऑफ साइंस है और विले। तो इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाता है आपके लिए, तो बहुत ज्यादा तगड़ा रिपोजिटरी है। इसमें सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, वो है स्कोपस। और जेगेट का एक्सेस अभी तो नहीं मिल रहा, मैंने करके देखा था, ये जेगेट एक्सेस नहीं हो रहा है, पर जेगेट बहुत अच्छा है। जेगेट का अलग से आपको लॉगिन मिल जाएगा। अभी मैं कोई तो भी एक लेता हूँ और समझा देता हूँ आपको। सपोज वेब ऑफ साइंस, ये बहुत ही पॉपुलर, आपको तो मालूम होगा शायद, स्कोपस और WOS जो हम लोग बोलते हैं, ये दो चीजें सबसे ज्यादा चलती हैं। तो ये वेब ऑफ साइंस को कैसे ब्राउज करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये वेब ऑफ साइंस का सर्च, ये होम पेज है। इसके सर्च विंडो में, ये सर्च विंडो है आपकी। ओके, इसको सर्च कैसे करते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे फिर से वही, आप डबल कोट में थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर डाल देंगे। ओके, अभी एक नई चीज मैं आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। अभी देखिए, जैसे मैंने बिहेवियर यहाँ पे डाला तो ये स्पेलिंग गलत दिखा रहा है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये सही है, यानी ये अमेरिकन है। दूसरा एक ब्रिटिश आता है। अभी ये स्पेलिंग VIOUR लेना है या OR लेना है, इसमें थोड़ी सी तकलीफ है। तो इसमें जब कुछ पेपर्स में OUR लिखा होगा, कुछ पेपर में तो UR लिखा होगा, आपको दोनों चाहिए। तो उस वक्त क्या करना, ये UR हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए एस्टेरिस्क। समझ में आ रहा है कि जब स्पेलिंग में दुविधा है, अमेरिकन है या फिर आपका ब्रिटिश है, इसमें अगर दुविधा है और आपको दोनों चाहिए, तो फिर उसके लिए इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं इसको। ये हम लोग वाइल्ड कैरेक्टर्स इसको यूज करके, स्टार एस्टेरिस्क जो है वो यूज अगर मैं करूंगा तो ये OUR भी आ जाएगा उसमें,
और फिर OR भी आ जाएगा। गेटिंग मी? अभी मैंने थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर यहाँ पे ढूंढना है, वो मैंने डबल कोट में इसको कमांड दे दी। अभी ये मुझे पूछ रहा है कि इस नाम से आपको टॉपिक चाहिए कि इस नाम से ही आर्टिकल का टाइटल चाहिए, या फिर बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि इसी नाम के आर्टिकल के टाइटल हो, तो मैंने टाइटल सिलेक्ट कर लिया। अभी मुझे इसके साथ परचेस इंटेंशन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड रो कर रहा हूं। गेटिंग मी? एंड ऐड रो जैसे किया मैंने, यहाँ पे बुलियन कमांड्स आ रहे हैं। आपको एंड करना है कि और करना है कि नॉट करना है? तो मुझे तो एंड चाहिए, इसलिए फिर यहाँ पे मैं एंड परचेस इंटेंशन कर रहा हूं डबल कोट में। उसके बाद मुझे परचेस इंटेंशन टाइटल में चाहिए क्या? हाँ, मुझे टाइटल में ही चाहिए, तो मैं यहाँ से टाइटल सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद मुझे और फर्दर कमांड चाहिए कि मुझे और ढूंढना है ऑनलाइन शॉपिंग। मैं फिर से ऐड रो करूंगा और इस बार मैं एंड में ऑनलाइन शॉपिंग डाल रहा हूं। ओके, पर ऑनलाइन शॉपिंग मुझे टाइटल में नहीं रहा तो भी चलता, पर टॉपिक में कहीं पे तो भी चाहिए। पूरे पेपर में ऑनलाइन शॉपिंग ये वर्ड कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैंने टॉपिक जैसे कि वैसा रखा। अभी ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ही मुझे यहाँ और भी आप कर सकते हो इंटरनेट शॉपिंग, और करके इंटरनेट शॉपिंग आप कर सकते हो। ये टॉपिक में ही चाहिए मुझे। यहाँ पे आप टाइम स्पैन ले सकते हो कि मुझे इफ सपोज पिछले, यहाँ पे आप कस्टम ईयर रेंज कर सकते हो, आपको कब से कब तक का चाहिए। इफ सपोज मुझे ये 2010 से 2021 तक चाहिए। ओके, एंड देन नाउ सर्च ओवर हियर। इसमें लिस्ट आ जाती है सामने, कितने आर्टिकल्स है उसकी। आप जैसे देख सकते हो मुझे 137 मिल गए, और ये पूरे 137 मेरे काम के हैं। एज यू कैन सी, जो भी मुझे चाहिए था वो सब आ गया। गॉट इट? इट्स सो इजी। और यहाँ पे आपके कीवर्ड्स है कि मैंने ढूंढा क्या है, तो ये ढूंढा है मैंने। इसको आप रिफाइन भी कर सकते हो। जैसे इसने ईयर वाइज ब्रेकअप दे दिया, 2020 के 11 है पेपर्स में, 2019 के 7 है रीस पे। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग कर सकते हो कि मुझे सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट के चाहिए, मुझे सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स चाहिए, मुझे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे करेक्शन की जरूरत नहीं है, बाद में रिट्रैक्टेड की जरूरत नहीं है, मुझे इतना सफिशिएंट है, आर्टिकल और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे और ऑप्शंस है। यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपको रिफाइन करना है तो कर सकते हैं। एंड नाउ ये रिफाइंड लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सर्च है बहुत ज्यादा फाइन ट्यून हो रहा है, और जो हम ढूंढना चाहते हैं बस उतना ही डेटा आ रहा है। एज यू कैन सी, दीज आर द 41 पेपर्स, गॉट इट, दैट आई कैन इजीली रेफर टू। मैं इस पे क्लिक करता हूँ पेपर पे, तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है इसका। थोड़ा सा बुकिंग टाइम लग रहा है। एज यू कैन सी, एब्स्ट्रैक्ट इज एट माई डिस्पोजल। और हमको एलआर में तो यही चाहिए होता है, एब्स्ट्रैक्ट इतना सफिशिएंट हो जाता है। फुल लेंथ अगर चाहिए तो आपको एक बार इसको देखना होगा ओपन सोर्स में है या नहीं है। बट इट सो दिस वे आप इवन स्प्रिंजर का भी डेटाबेस है, और जो बाकी डेटाबेसेस मैंने आपको बताया एल्सवेयर के वगैरह, वो मोर और लेस ऐसा ही इसको ढूंढते हैं, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव से पार्ट है। और इतना टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि मुझे सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेस के, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या है वो पढ़ाना अपेक्षित है। तो मुझे लगता है मैंने जस्टिस कर लिया है इसको लेके। इसका ना आप यहाँ से एनालाइज रिजल्ट दिख रहे हो ना, यहाँ से आप इसका पूरा एक्सेल में लेके जा सकते हो। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, ये एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो आप। यहाँ से डाउनलोड हो जाती है पूरी लिस्ट। ये 41 आर्टिकल जो मैंने ट्राई किए हैं, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे पूरे। गॉट इट? ये डाउनलोड भी करके दिखा Very informative, sir. Thank you so much. ये शुरुआत है मैडम, ये जस्ट ट्रेलर है। ये सिंपल सा ट्रेलर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने लायक अभी भी। जस्ट बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ टाइम इतना डिटेल में नहीं जा पा रहा हूं मैं, पर ये है एक एरिया है ऐसा कि जो रिसर्च स्कॉलर को मालूम ही होना चाहिए। हम लोग कैसे ढूंढ रहे हैं और कैसे, यानी कौन से क्वालिटी के पेपर हम लोग साइट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो मैं आई एम गेटिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन नाउ। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो पूछ सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन हूँ यहाँ पे, इस रिलेटेड कुछ होगा तो ये करके दिखा देता हूँ। सर शोधगंगा का कुछ बताइए। क्वेश्चन है इसको लेके? अच्छा शोध गंगा आप करके देखिए मैडम। मैं एक ब्रेक भी ले रहा हूँ थोड़ी देर बाद, तो ब्रेक में आप करके देखिए। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है वो, बहुत यूजर फ्रेंडली है। हाँ किया तकलीफ क्या है? अच्छा करते हुए कुछ पर्टिकुलर। तकलीफ जा रही है क्या? हाँ नहीं, एग्जैक्टली मुझे जो टॉपिक एकदम इंटरनल टॉपिक उसका तो एग्जैक्ट तो फिर बाकी वहाँ आप सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग करिए मैडम। जैसे आप इकोनॉमिक्स के हैं तो हाँ सब्जेक्ट बिल्कुल। वाइज ही कर रही हूँ मैं भी। हाँ। मुझे सब पर्टिकुलर वर्ड ही चाहिए और सब्जेक्ट नहीं वर्ड वहाँ पे नहीं है सुविधा, वहाँ पे थीसिस के टाइटल आ जाते हैं सिर्फ। हाँ टाइटल आते हैं। हाँ हाँ तो शोध गंगा में ये फैसिलिटी नहीं है, शोध गंगा में सिर्फ थीसिस के टाइटल्स आते हैं। यस यस। तो हमारे इंडियन रिसर्च ध्यान गंगा भी है ना सर? ये कुछ कौन सा? ध्यान गंगा? ध्यान नहीं गंगा मैडम मैंने नहीं सुना है नहीं मैंने उसके बारे में नहीं सुना है। ओके ये जो दुनिया तो के हमारे बेस्ट है ना वो यही है, जो स्प्रिंजर विले। हेलो हाँ सर। जो बेस्ट है ना ये, जैसे मैंने WOS का दिखाया आपको डेटाबेस, स्कोपस ऐसा ही डेटाबेस है। एक्चुअली WOS जो अभी हम लोग देख रहे हैं स्कोपस का ही छोटा भाई है। स्कोपस भी अच्छा खासा रिपोजिटरी है, इसमें मिल जाते हैं। और जो फुल टेक्स्ट है इसमें फुल टेक्स्ट नहीं मिलते हैं, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट और कितने आर्टिकल आप जो ढूंढ रहे हो उसको लेके दुनिया में कितना काम हुआ है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके पर आपको फुल टेक्स्ट के लिए ना वो साइंस डायरेक्ट है या फिर स्प्रिंजर है, जेगेट में फुल लेंथ मिल जाते हैं। आपका जेस्टोर है बहुत अच्छा है, एनलिस्ट है, ये सब डेटाबेसेस है जो दुनिया के बेस्ट है और ये आपने रेफर करनी चाहिए। मैं कुछ सर और एक आपको क्वेश्चन है। हाँ मैम। When we are referring to international articles और thesis, तो हम अपना जो वर्क करेंगे क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं? बिकॉज द सैम्पल इज डिफरेंट, मतलब पूरा फैक्टर्स अलग है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग स्टडी ऑन मेडिसिन बट इफ आई एम रेफरिंग और स्टडिंग कि वहाँ क्या मॉडल्स यूज हो रहे हैं व्हाट एनीथिंग, तो अपनी स्टडी में हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं या कैन वी रिलेट इट? ठीक है ठीक है, ये तो दुविधा सभी रिसर्च स्कॉलर की है, पर इंसिडेंटली ये ना लिटरेचर रिव्यू का जब लेक्चर होगा उसमें शायद एड्रेस होगी, पर आपने पूछा है तो मेरा काम बनता है मैं आपको बता दूं। लिटरेचर रिव्यू करते कैसे उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया। इसके बाद आता है लिखते कैसे है, हेडिंग में। अभी देखिए लिटरेचर रिव्यू जो है ना, आप ढूंढते हो क्या ढूंढते हो, आपके पीएचडी का जो टाइटल है जैसा का वैसा आप सर्च करोगे तो शायद एक हाथ पेपर ही मिलेगा आपको। तो लिटरेचर रिव्यू वैसे नहीं करता है। लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको थीम्स डिवाइड करनी होती है। यू जस्ट ट्राई टू ब्रेक योर टॉपिक इनटू सम एप्रोप्रिएट थीम्स एंड सब थीम्स एंड यू स्टार्ट सर्चिंग लिटरेचर ऑन थीम्स एंड सब थीम्स, नॉट द एंटायर टाइटल। यानी में अभी जैसे आप बोल रही कि मेडिसिन में कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट भी सपोज रैंडम ट्रायल का हुआ है या फिर कंट्रोल का किया है, यानी दो अलग मेथड, एक प्री पोस्ट में हुआ है और एक रैंडमाइज कंट्रोल मेथड से किया है, तो फिर हम क्या करें? तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो रही है अलग अलग मेथड्स की, तो यू जस्ट रिसोर्ट टू लिटरेचर रिव्यू ऑफ यू नो द मेथड्स ओनली, कि कौन सी मेथड्स आपके टॉपिक से रिलेटेड फॉलो किए गए एंड यू जस्ट ट्राई टू सबमिट ओवर देयर। आप मेडिसिन को लेके आपने इफ सपोज 4 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स को आप अलग अलग करिए ना, कि थीम नंबर 1 लीजिए उसका एलआर एक जगह लगा दीजिए पूरा, फिर थीम नंबर 2 लीजिए, पूरे के पूरे टॉपिक का नहीं करते। एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं रिसर्च स्कॉलर, लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर्स आप खोल के देखिए थीसिस के, आपको दिखेगा कि बस वो एक ऑर्डर में, कोई ऑर्डर नहीं, उसको जस्ट वो पुटअप किया है, एक के नीचे एक पॉइंट में वो जा रहा है, इट इज मीनिंगलेस। यू आर सिंपली रिपोर्टिंग एंड थ्रू लिटरेचर रिव्यू वी आर नॉट सपोज्ड टू रिपोर्ट, वी आर सपोज्ड टू कंक्लूड, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ। हमको तो समझ में आना चाहिए कि क्या है,
और हर चीज को आपको, हर सेक्शन को आपको समराइज करना होता है कि आपने पूरे के पूरे आपका पीएचडी के टाइटल को आपने सपोज 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो पहला सेक्शन जो है, पहली थीम जो है, उसको लेके आपको सपोज 22 एलआर मिले, तो वो 22 एलआर में क्या पैटर्न्स दिखे गए हैं, क्या मेजर फाइंडिंग्स Okay. रही है, यू जस्ट ट्राई टू समराइज ओवर देयर, Right, and then we देन can यू derive. मूव ऑन टू योर थीम Yes, नंबर very 2। nice. Yes. एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपने डिराइव किया है कंक्लूजन 22 पेपर का थीम नंबर 1 का, ये हो गया दुनिया में क्या हुआ है उसका। नाउ यू हैव डन द सेम थिंग अगेन ओवर हियर एट द लोकल लेवल। आप जब कंक्लूजन Right. लिखते हो ना, मुझे कंक्लूजन कैसे लिखते हैं ये पूछने वाले अनगिनत लोग हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं, कहीं लिखा भी नहीं और इंटरनेट पे ये चीजें मिलती भी नहीं है। कंक्लूजन में आपको वही करना है कि आपकी फाइंडिंग और एलआर की फाइंडिंग को कंपेयर करिए, कॉन्ट्रास्ट करिए, सिमिलरिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, कॉन्ट्रास्ट क्या आया, क्यों आया, वो सब एलैबोरेट करना यानी कंक्लूजन होता है। Right. कंक्लूजन Okay. लिखने के लिए आपको एलआर के कंक्लूजन होना जरूरी है। Right. आप एलआर को रिपोर्ट मत करिए, एलआर को आप पैटर्न्स निकालिए कि दुनिया में जो हुआ है उसमें क्या दिखा गया है, और उसको अपने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे आप कंक्लूजन में। पर Okay, इंसिडेंटली आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं एनकरेज करना चाहता दूसरे किसी के टॉपिक पे, तो मैं जस्ट ये जो पर्टिकुलर सेकंड सेक्शन है हमारा उसको कंक्लूड कर देता हूँ। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी दे दिया है आपको। जेगेट के बारे में मैं बोल रहा था, बहुत अच्छी रिपोजिटरी है और मैं भी फिलहाल पेपर पे काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा पेपर्स अगर कहीं पे मिले थे तो वो जेगेट। जेगेट की खासियत ये है कि इसमें ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट के, जैसे आईआईएम के कोई बंदों ने रिसर्च किया हुआ है, तो वो आपको हमखास इंडिया के जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, एमईटी हो या फिर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स हो, जितने भी बड़े, या फिर आपका रामानुजन यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्च स्कॉलर्स है, या फिर सिम्बोसिस, नरसिंह मोंजे, ये लोग जो करते हैं ना, इनके पेपर्स का आपको स्ट्रेस यहाँ पे मिलेगा। जेगेट में इंडिया के जो बेहतरीन रिसर्च है वो बहुत अच्छे आपको जेगेट में मिल जाएंगे। आई एम इन लव विद जेगेट बॉस, कि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स जेगेट में, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट के जेगेट में मिलते हैं। इसका वही है कि इसका एक्सेस लग कर लीजिए, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में है तो वहां पे ये लॉगिन होता ही है, सभी के पास होता है। मेरे खुद के कॉलेज में भी जेगेट का एक्सेस है हमको, ये होता ही है। सिर्फ तकलीफ ये है कि हमको ये मालूम नहीं रहता है कि जो कॉलेज में काम करते हैं वहां पे कौन से जर्नल का एक्सेस हमने सब्सक्राइब करके रखा है। वो थोड़ा सा लाइब्रेरियन से बात कर लीजिए और उससे इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। लॉगिन आपको, तो आप वहां के एम्प्लॉय, तो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, एंड यू जस्ट स्टार्ट ब्राउजिंग। और आप देखेंगे थोड़ा सा ब्राउजिंग जो है ना, हर एक जो रिपोजिटरी है उसके सर्च स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा फर्क है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक कीवर्ड डाल दिया एम्प्लॉयबिलिटी, यहाँ पे मैं रिफाइन सर्च करूंगा तो फिर से वो डिटेल्स मुझे पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, कि टॉपिक चाहिए, कि एंड चाहिए, कि और चाहिए, या ईयर वाइज चाहिए, या सब्जेक्ट वाइज चाहिए। तो ये हर रिपोजिटरी में की जो सर्च स्ट्रेटेजी इसको कहते हैं, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। और मजे की बात ये है कि यहाँ पे आपको फुल लेंथ पेपर मिल जाते हैं, ये हाइपरलिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे ये मिल जाते हैं आपको। बाद में साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंजर एक बहुत ही अच्छा तगड़ा रिपोजिटरी है। अभी जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया उसमें आपको दिखा भी होगा वो लिस्ट में। एमराल्ड आपको मालूम है कि दुनिया का बेस्ट है, एमराल्ड इनसाइट जिसको कहते हैं। जे स्टोर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। एप्सको है, प्रोक्वेस्ट है, ये भी बहुत ही बेहतरीन अपकमिंग रिपोजिटरी आप बोल सकते हो, यूके की है ये। बाद में सेज पब्लिकेशन आपको मालूम है, कैम्ब्रिज, जेगेट में अभी बात कर ही रहा था। तो ये कुछ रिपोजिटरीज है जो आप आसानी से सर्च कर सकते हो। कुछ जगह लॉगिन लगता है, कुछ जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड सेक्शन जो है वो वाइंड अप होता है। सेक्शन में हम लोग चाह रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। सर ये फ्री में ब्राउज करने वाला सबसे बेस्ट, मतलब रैंकिंग वाइज आपके हिसाब से क्या होना चाहिए रिपोजिटरीज? फ्री में सर गूगल स्कॉलर में बहुत कुछ मिल जाता है सर। सिर्फ और उसको next- ठीक से सर्च करिए। गूगल स्कॉलर बहुत अच्छा है। अगर जिसको बहुत इफिशिएंटली गूगल स्कॉलर सर्च करने आता है ना, उसको मिल जाते हैं, अच्छे पेपर्स मिल जाते हैं। सर अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इन डिक्रीजिंग ओपन में नहीं है सर, उसको लॉगिन ही लगते हैं, जो भी है अच्छे वाले उसको लॉगिन ही लगते हैं। गूगल स्कॉलर एक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का एकेडमिया नाम से आता है,
वो भी आप देख सकते हो, गूगल स्कॉलर जैसा ही है वो, अकेडमिया, माइक्रोसॉफ्ट अकेडमिया। ओके, राइट राइट। और बाकी ये जो मैंने बताया, जेगेट, जेस्टोर, विले, स्प्रिंगर, पबमेड, ये सबको आपको एनलिस्ट हो गया या फिर डब्ल्यूओएस, स्कोपस, ये इन सबको लॉगिन लगता है। और ये लॉगिन आसानी से मिल जाता है, आपको सिर्फ ढूंढना है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो आपको लॉगिन दे सकता है, या फिर आप कहाँ से ले सकते हो। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी या फिर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, ये कुछ सोर्सेस है जहाँ से लॉगिन मिल जाते हैं। एक प्रोसेस होती है लॉगिन लेने की, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए अप्लाई करना होता है। ओके सर, ओके, Any other थैंक questions? यू। सर आपण ब्रेक घ्यायचा का आता 5 मिनिटाचा? हो ठीक है मैडम। फ्रेंड्स आप लोग मीटिंग लीव मत करिए, 5 मिनट के लिए रिफ्रेशमेंट का ब्रेक है, देन वी विल ज्वाइन अगेन। लीव मत करिएगा मीटिंग।
वंदना भेंडे मॅडम व्हिडिओ ऑफ ठेवा. वंदना भेंडे, काइंडली ऑफ युअर व्हिडिओ.